Good morning, students. As we have completed our 13th lesson about North America geographical features, today we are going to start a new chapter with the same topic of North America. But in this chapter, we are going to learn about economic features. Economic features means the features which are there helpful for the monetary or the financial status of a country, that is called as economic features. Economic features deals with what a country exports or imports and what is its financial condition, deals with economic features. As we know, the North America is one of the most prosperous and a very highly advanced industrial continent. Many type of industries, many type of technological high-tech IT centers and all, they are being developed in North America. North America being a continent have different countries in it, like Canada, like USA, like Mexico. So these are the some places which are having their own parts which are developed and which are developed in a very high technological concepts. The economic standard or the condition of North America is the world's strongest in our condition. As the word America, everyone knows कि America is one of the most powerful, most advanced and you can say the richest one or the wealthiest of the particular country. And so we know that politically is also it's very strong and in the economic standard also it is very strong. So right now we are dealing with how North America, different countries or the states are getting their revenues, they are getting their income from. So we had two things to study first, that is about natural resources and economic standard structure. Natural resources are the resources or the things that our nature is giving to us, like forest things, minerals, different coal, petroleum. These are the different things that the nature is giving to us, and from that we are processing them or we are using them to create money. So that is called as natural resources. Economic standard structure means the things which are either we are using in the original form or we are processing it. या तो हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर को यूज करके बेच रहे हैं या फिर हम उसे प्रोसेस करके नया रूप देकर आप उसको यूज कर रहे हैं, तो ये कहलाया जाता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. द टोटल वैल्यूएशन ऑफ अ पर्टिकुलर region depends on its economic structure. So further, as we are discussing, the major nations of North America is USA and Canada. These are the two big nations of North America which deals with the particular major industrial part of North America. So we have divided our list into some of the content. Here I am going to start with agricultural resources. Then we are going to talk about forest resource and then mineral and energy resources. First, we are going to study about agricultural resources. Like our country, Northern America also is a great place for agriculture. As in our previous chapter we had discussed that different physical landforms help North America to produce and to farm different things. जैसे बीच में हमने बात की थी कि नॉर्थ अमेरिका के जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे बहुत बड़े ग्रासलैंड है, पेरीज, ईस्टर्न कोस्ट है, हाईलैंड्स हैं, कॉर्डिलेरास हैं. तो इन जगहों पे अलग अलग तरह के वेजिटेशंस उगते हैं, अलग अलग तरह की फार्मिंग होती है. ऐसा कॉन्सेप्चुअली निकाला गया है कि अबाउट 1/12 of the total production in agriculture
1/12 1/12वां हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर का हमें नॉर्थ अमेरिका करके देता है। मेजरली यहाँ पे हर तरह की चीज़ें उगाई जाती हैं। ये बहुत ही अच्छी उनका लैंड सरफेस है, वहाँ पे बहुत फर्टाइल एरियाज भी हैं, कुछ ऐसे डेल्टास और ग्रेट बेसिन्स हैं जहाँ पे बहुत उपजाऊ ज़मीनें हैं ताकि अच्छे से फार्मिंग हो सके। और द बेसिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फूड ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप्स। फूड ग्रेन्स मतलब those particular grains which are produced for the consumption of population and people, and if they had lot of production so they can export it. Cash crops are those crops which are basically grown to earn money. Like take an example of cotton. You do not eat cotton, but what you do, you take cotton, you process it, you make it clothes out of it, you make different articles out of it, and then that process part is being used by the cotton. So these are the some features which are basically used in North America. As we know that the central part of North America is a very big fertile land which is called as prairies, and सबसे बड़ा जो वहाँ पे एरिया है वो ये है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फील्ड्स हैं, बहुत हाई टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। देन यू हैव बिग मशीनरीज, लेबर्स वहाँ कम है, वहाँ पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है, वो अभी हम बात करेंगे आगे। पर किलोमीटर सिर्फ 21 लोग ही मिलते हैं वहाँ पे, नॉट लाइक इंडिया इट्स हाईली पॉपुलेटेड, बट वहाँ पे एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, साइंटिफिक वेज उन लोग यूज़ करते हैं फार्मिंग पर्पस के लिए एंड एग्रीकल्चर के लिए। तो वी आर स्टार्टिंग विद व्हीट for agricultural resources. The first and the most important and the biggest and the largest production of North America is wheat. Wheat is produced and it is a chief crop of that area. जो लगभग हम ये बोलते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में wheat सिर्फ एक सीजन में उगाया जाता है, but in North America it is being cultivated in 2 seasons. One in the winter wheat and another one is called as spring season wheat. And the areas at the central part of the North America, what you called as prairies. Prairies is a big part where the agriculture wheat is being produced and wheat is being cultivated. And you can say North America stands the second world's largest production of wheat in the world. And for that way, prairies क्योंकि सबसे ज़्यादा wheat उगाता है, इसलिए उसे हम basket of bread भी कहते हैं. Okay, or this region is also called as wheat belt. Another one is maize. Maize मतलब ये भी एक बहुत ही important staple food है वहाँ का, मैक्सिको का। maize को USA में corn भी कहा जाता है, and ये भी इंडिया वर्ल्ड का काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन देता है। In fact, मैक्सिको itself पूरी दुनिया का आधा maize का प्रोडक्शन मैक्सिको करके देता है, and इसलिए उसे हम बेल्ट ऑफ मेज कहते हैं। देन यू कम टू बार्ली। बार्ली जो है बेसिकली लार्जली प्रोड्यूस होता है कनाडा में, और इस वजह से हम ये देखा जाता है कि कनाडा में सबसे ज़्यादा द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बार्ली इज देयर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। मिलेट जो है वो भी बहुत प्रोड्यूस होता है यूएसए और मैक्सिको में, जहाँ पे यूएसए मिलेट के मामले में फर्स्ट स्टैंड करता है और मैक्सिको 4th लेवल पे आता है। राइस, सोयाबीन, कॉटन, ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, पर जहाँ पर बात होती है यूएसए की, यूएसए स्टैंड फर्स्ट अमंग द क्रॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसा देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत वेल इक्विप्ड मशीनरीज हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी साइंटिफिक वैल्यूज़ को यूज़ करके इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, बहुत अच्छी वैराइटीज़ के क्रॉप्स होते हैं। वहाँ का क्लाइमेट उनको फेवर करता है ताकि वहाँ का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ योर शुगर केन। शुगर केन इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन क्यूबा, और इस वजह से उसको होम ऑफ शुगर भी कहा जाता है।
इन नॉर्थ अमेरिका जो इस जगह पे यूज होता है. देन यू हैड डिफरेंट थिंग्स लाइक ग्राउंडनट, टोबैको, फ्रूट, डिफरेंट थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ अमेरिका जो काफ़ी सूटेबल है और काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस होता है. द सेकेंड वन इज योर मिनरल फॉरेस्ट रिसोर्सेज. फॉरेस्ट रिसोर्सेज बेसिकली फॉरेस्ट से जो हमें ट्रीज या उनके वुड ब्लॉक्स मिलते हैं उनसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं. और जिसमें बात यदि होगी है तो फॉरेस्ट की तो सबसे ज़्यादा घने फॉरेस्ट जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जो खास तौर पे कनाडा रीजन में ज़्यादा है. तो वहाँ पे जो चीफ ट्रीज पाए जाते हैं वो है चेर, फर, स्पर एंड बाल्सम, जिनकी लकड़ियों का इस्तेमाल खास तौर पे पेपर इंडस्ट्री और फर्नीचर इंडस्ट्री में होता है. इसलिए ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पेपर का और फर्नीचर्स का, मतलब ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कनाडा में है. तो यूएसए और कनाडा एक मेजर इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर पेपर और पल्प मतलब लकड़ी के जो बुरादा होता है उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है. डलगस फर एंड वाइट पाइन ये बेसिकली वहाँ पे मिलता है जिनसे जो रूम की फ्लोरिंग होती है उसको किया जाता है. अब ये ट्रेंड हमारे इंडिया में भी आ गया है कि ऐसे कई रूम्स हैं जहाँ पे वुडन फ्लोरिंग होती है. तो ये वुडन फ्लोरिंग वहाँ पे ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे कोल्ड कंट्रीज हैं तो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड फ्रॉम आउटसाइड तो दे हैड वुडन हाउसेस फ्रॉम इनसाइड. तो ये जो पर्टिकुलर डलगस फर और वाइट पाइन की जो ट्रीज है वहाँ पे ये वुडन फ्लोरिंग के काम में आते हैं. सेकेंडली यहाँ पे दो हार्ड वुड के प्लांट्स ट्रीज पाए जाते हैं विच इज कॉल्ड एज महागोनी एंड लॉगवुड, जिसका इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे मैच बॉक्सेस बनाने के लिए किया जाता है. अनदर वन चिकल ट्री इज यूज फॉर चिकल गम. तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जो बेसिकली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है. देन यू कम टू मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. मिनरल की बात करें तो मिनरल्स आर समथिंग विच यू आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. ऐसी चीज़ें जो आप ज़मीन से निकाल कर इस्तेमाल करते हो उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. बहुत सारी चीज़ें अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हमें मिलती है जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जिंक, कॉपर, सिल्वर एंड ऑल. many things are being mineral and used and produced there. जहाँ पर ये माना जाता है कि about 32% of the world's zinc प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है. 27% करीबन कोल होता है, 25% वहाँ पे पेट्रोलियम होता है. सिल्वर का प्रोडक्शन मैक्सिको में होता है एंड इट इज बीन कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड. नॉर्थ अमेरिका is rich in coal and petroleum and it is the second largest producer of coal and natural gas also. तो डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे होती हैं. जहाँ पर हम ये बात करें तो वहाँ पर जिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कनाडा में ही जिंक का प्रोडक्शन होता है. मतलब एज पर द मिनरल बेसिस कनाडा में सबसे ज़्यादा जिंक मिलता है जिसकी वजह से वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन एरिया कहलाता है. आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, many areas are there in नॉर्थ अमेरिका जो बहुत स्पेशली उन चीज़ों के मिनरल्स के प्रोडक्शन के लिए अलग अलग एरियाज हमें दिए हैं जो उन जगहों पे है. फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट few more